ہم جس کا انتظار تھا وہ اس جگہ پر آ گئے ہیں اور ہمارے شیخ بھی یہاں آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا کچھ آبزرویشن کی ہے میں نے. سب سے پہلے اگر اس سے ہی بات کی جائے، بہت سارے یہاں پہ مختلف قسم کے مختلف سائز کے بچے بھی ہیں اور بچھڑے بھی ہیں. تو بچھڑوں سے متعلق اور اونٹ اور دیگر جانوروں سے متعلق بات کرنی تھی کہ مختلف ہے، مختلف قسم کے ڈیزائن بھی ہیں، لیکن نارملی دیکھا جاتا ہے کہ ان میں ان کو ان کی طرف یہ کر رہے ہیں. مختلف قسم کے جانور جو ہیں ان کے اوپر مختلف قدرتی ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، لیکن اور خوبصورتی کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ کسی جانور پہ لکھا ہوتا عید مبارک اور کہیں لکھا ہوتا خیر مبارک. خوبصورتی کی خوبصورتی ہو جاتی اور اچھا بھی لگتا. الفابیٹ بھی ہوتے، کہیں انگلش میں ہوتا کہیں اردو میں ہوتا. کیا فرماتے ہیں شیخ؟ لوگ لکھتے بھی ہیں اس طرح کا عید مبارک غالباً، لیکن لکھنا مناسب نہیں ہے کہ عید مبارک کے سارے حروف قرآنی ہیں. لفظ عید بھی قرآن میں، مبارک بھی قرآن میں، اور حروف بھی، حروف تہجی الفابیٹس جو ہیں اس کے، یہ بھی سب قرآنی ہیں. تو ان کا احترام ہونا چاہیے. تو اب یہ جانور ہے، اس کو گرائیں گے، یہ خون آلود ہوگا، تو یوں مطلب تھوڑا ادب یہی ہے کہ اس پر کچھ لکھا نہ جائے، انگلش میں بھی نہ لکھا جائے. کہ یہ بھی اقوال ہیں کہ ہر زبان جو ہے یہ الہامی ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. چلیں حضور، کیا اور کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اور اگر ایک یہاں پر یہاں تشریف بدل شیخ آپ یہاں تھوڑا قریب لے آ جائیے بس. یہ ایک ہمارے پاس یہ غالباً بھینسا ہے. اچھا اب ایک تو ہم انشاءاللہ وہ چینل لا رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل انشاءاللہ، اور یہ بھی کافی عمر رسیدہ لگ رہے ہیں، تو ایک بزرگ جانور بھی ہے. تو اب اس کو بھی اگر کچھ مہندی وغیرہ کا صورتحال ہو جاتی، اور اس کو ہم نے نلایا ہے تو یہ بڑا انجوائے کر رہا تھا، تو کیا شاید یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے نلایا جائے، تو اس کو نلایا گیا ہے، اس کا ثواب ملے گا؟ یہ اپنی کہاوت ہے کہ میمنی میں پاڈے جی پٹتے پانی، اس کو میمنی میں پاڈا بولتے ہیں. اچھا اس کو پانی جتنا ڈالے اس کو مزہ آتا ہے. جی جی. اچھا اس کے وہ میمنی میں پوٹتے تو یہاں پہ فیس پہ ڈالا تھا نا، اس پہ بھی انجوائے کر رہا تھا یہ. اور کیا اس کو ہم جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے یا رسول اللہ. تو ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ اور کیا روزانہ نلانا چاہیے اس کے؟ یہ پانی میں بھینسیں تو پانی میں گھنٹوں پڑی رہتی ہیں، پانی میں نہروں وغیرہ میں ہے نا، تیرتی بھی ہیں. جی اب یہ کہ جو ان کے ماہرین ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر کہ روز نہلانا یا ایک بار نہلانا کافی یا 2 بار نہلایا جائے یا روز روز نہ نہلایا جائے، کس سیزن میں نہلایا جائے، گرمی میں سخت دھوپ میں نہلایا جائے یا کوئی ٹھنڈے پیر. تو اب یہ اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں. اتنا پتہ ہے کہ یہ پانی میں تیرتے بھی ہیں بھینسے وہ، اور پاڈے نپٹ پاڈا نپٹ پر پاڈے جی پٹتے پانی، یعنی پاڈا جو ہوتا ہے وہ کوئی بھاشا سمجھتا نہیں ہے، یعنی اس کو ایسا ہے جیسے پانی ڈال دیا تو یہ پڑا رہے گا، شاید یہ مراد ہو. اچھا اب یہ آپ نے اس کو بولا کہ یہ عمر رسیدہ ہے، تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اصل میں اس کے سفید بالوں کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ شاید اس کی عمر کافی ہوگی، میں بھی. کیا فرماتے ہیں شیخ؟ ہاں یعنی اب یقینی طور پر تو ہے نہیں. اور اب یہ اس کا ناک وغیرہ کچھ زخمی ہے. یہ کڑا ڈالا ہے اس کے اوپر، کنٹرول کرنے کے لیے رکھنا پڑتا ہے ان کو. ہاں وہ نتھ ناک میں وہ سوراخ کر کے رسی. اچھا یہ ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی ہیں، یہ بھی آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں. جی بچوں
माइक वहां से लिए. से छुट्टे माइक दीजिए, बच्चों को माइक दें. ये माइक आ गया. એના માટે સવાલ જવાબ થશે યા કઈ આગળ પાછળ મજાક કે છે આગળ પાછળ हाँ मुख्तलिफ हाँ यहाँ भी. નકેલ નથી ને એમાં जी 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 એ ગભરાઈ રહ્યું છે जी जी. શાયદ હવે ये आपने कुछ गुजराती में छे नहीं जबराई और छे ने वो छे ये क्या छे था? मैंने ये क्या किया 6 वाला 6 नहीं था. अच्छा. ये 6 मैंने है. है इतना बड़ा पैसा घबरा रहा है. अच्छा ये है और है भी देखें. ये दावत इस्लामी में तलफ्फुज ना नॉर्मली उसकी अदायगी गुजराती में नहीं. एक तो 6 उसका है, मैंने कहा है तो शेख ने फरमाया है. असल लफ्ज है हम करते रहते हैं. तो उर्दू जो सीखनी हो आपकी भी यही जी. मेरे बहुत सारे तलफ्फुज यहाँ ठीक हुए हैं. ठीक है ना. ये वजह यहाँ सब यहाँ उर्दू वालों को भी सही होती जी जी. तलफ्फुज अगर सही करने और नियतों का तो खास तौर पे एक चीज है. नियतों का अगर किसी को इंसाइक्लोपीडिया देखना हो तो वो दावत इस्लामी को देखे. यहाँ पे हर चीज की नियत और फिर उसका सवाब भी है अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में. और कोई सवाल छे? सवाल तो बहुत है. चल वो ये जो जानवर है जो भैंसा, हाजी रजा ने कहा कि अब इसकी नकेल भी नहीं है. ऐसा नहीं चूंकि बिदक रहती है पब्लिक की वजह से, तो ये छोड़ा के अगर निकल गया तो फिर जोड़ फ्लैट में आया. एहतियात अच्छी है तो हट जाए. अब वो सेट हो गया, अकेला हो गया ना. नाई धोई ने बिल्कुल फ्रेश થઈ ગયો છે. माशाअल्लाह. अच्छा बच्चे प्लीज, बड़े बच्चे सबसे पहले कौन सवाल करेगा? क्या सवाल करेंगे पूछें. अमीर सुन्नत, यहाँ पे देखिए इतने सारे जानवर हैं, इन सब के आगे चारा पड़ा हुआ है. तो अगर इनमें से हमारा कोई जानवर हो और हम उसे चारा दे तो उसका पड़ोस का जानवर या उसके साथ जो जानवर बंधा हुआ है वो भी उससे मुंह डाले या उससे हमने जो चारा दिया है उससे खाना शुरू कर दे. तो अब ऐसी हालत में हम क्या करें? उसे रोके या फिर उसे खाना खाने दें? क्या करें? रुकना तो चाहिए जब तक असल मालिक इजाजत न दे. जानवरों को इतने फासले पर रखें कि वो दूसरों के चारे न खाएं, आपस में लड़ें भी नहीं, या अंडरस्टैंडिंग आपस में कर लें. जिन के बकरे हैं भले जानवर है, वैसे कुर्बानी का जानवर है तो खिलाना ज्यादा सवाब मिलेगा, वो खुद ही इजाजत दे दें कि भले खाए. एक और सवाल ये था कि जब हम अपने जानवर को चारा देते हैं तो कभी के बार वो देखें यहाँ पे भी चारा पड़ा हुआ है इतना सारा, तो कभी के बार ऐसा होता है कि वो चारे के ऊपर कुछ गंदगी वगैरह कर देते हैं. तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करें? उसे चारा दें या फिर क्या करें? हलाल जानवर को नापाक चीज खिलाना तो जायज नहीं है. एक तो तुझे ना गंदगी कर दी, ये तो हो गया नापाक. अब तो इसका धुलना भी ज़ाहिर मुश्किल है. अगर पाक कर भी लिया तो ये खाएगा या नहीं इसकी कोई मालूमात नहीं है. तो वैसे भी अगर ये चारा जो है आलूद हो जाए, बदबूदार हो जाए तो ये जानवर नहीं खाते. तो फ्रेश चारा भी इसके ऊपर ना डाला जाए. ये गंदगी और सारा गंदा हटा कर फिर उसमें डाला जाए. तो इसमें मोहतात तरीका यही होता है कि इसके जो खास टोकरे वगैरह आते हैं ना जानवरों के लिए, वो हो तो उसमें उसको खिलाया जाए. लेकिन अगर पेशाब भर गए, छींटे डाल दिए, पेशाब कर दिया उसमें, तो फिर सारा जानवर को खिलाना फिर नापाक चारा. ये हमेशा ख्याल रखें, नापाक चारा या नापाक ग़िज़ा ये इंसान के लिए भी हराम है और इंसान को इसकी भी इजाज़त नहीं कि वो जानवर को खिलाए. जायज़ नहीं है. हलाल जानवर को नहीं खिला सकते, हराम जानवर. हराम में फिर तफसील है कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं. अच्छा अमीर सुन्नत, हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे जानवरों के दरमियान खड़े हुए हैं और गर्मी भी है, तो हमें जब गर्मी लगती है तो हम तो नहा लेते हैं, लेकिन अब अगर जानवर को गर्मी लग रही है तो फिर इन्हें नहलाना ज़रूरी है क्या? जानवर और इंसान की मतलब ये कि वो कुव्वत बर्दाश्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ये खड़ा हुआ है ऊँट, इसको रेत का जहाज बोलते हैं, रणनु वहाण गुजराती में बोलते हैं, समझे. तो ये अब ये धूप में दौड़ता है और घंटों ये दौड़ता है. इंसान का तस्वुर नहीं है कि ये धूप में इतना रह सके. तो इसलिए दीगर जानवरों का भी अपना अपना कुव्वत बर्दाश्त होती है.
तो ये सारी जो बातें सर माहिरीन जो होते हैं ना, ये इनसे पूछ कर इन पर अमल करवाया जाए। ऐसा ना हो कि हम ठिठरती सर्दी में ठंडे पानी से नहला देने कुछ का कुछ हो जाए, या धूप में घंटों से वो खड़ा हुआ है और भी इसमें ठंडा पानी डाल दें और पता चला कि अभी कुर्बानी से पहले ही आपको। अच्छा, एक और मुशाहिदा रहा है ऊँट के जब दौड़ने की आपने बात की ना, कि बाज लोग है ना मंडी से जैसे मोटरसाइकिल पे एक राइडर है, उसने राइड कर रहा है, दूसरा उसकी रस्सी पकड़ी हुई है, अब वो बाजू का तेज भी चलाते, बाजू नॉर्मल, मंडी से अब घर कितना दूर है, करीब है, दूर है, इस तरह भी उनको ऊँट को घर तक लेकर आते हैं। तो ये मुशक्कत वाला जुल्म नहीं आएगा इसमें? जुल्म कैसे आएगा जब ये घंटों चलता है और रेत में चलता है, लेकिन ये चलता है, ये जानवर है। जानवर में इंसान में बड़ा फर्क है। बाज इंसान चलते हैं, अब भी साइकिलों में हज पे जाते हैं, पहले बुजुर्गान दीन पैदल हज करते थे अपने मुल्कों से कहाँ तक। तो अगर तो आमतौर पे जानवर चलता है, ये अभी ये सुजुकियां और ट्रक और ये बढ़ गए। मैं आपको हमारा हाँ सही है, हाँ सही है, हाँ समझी वांजीगा हाँ ही ऊपर ही ना हाँ। सांडियो देखा है। तो मेरे मरहूम भाई की जिंदगी का वो आखिरी साल था, तो हम लोग ये कराची से पिपरी भैंस कॉलोनी, पिपरी जो मंडी है कायदा, ये बहुत दूर है अपने खरादर से। हम लोग खरादर होते थे उन दिनों, गलबन में शहीद मसीह में होता था। तो हम गए थे पिपरी कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, जब ये भाई पैदा नहीं हुए थे, तस्वुर भी नहीं था, मेरी भी जवानी थी, दावत इस्लामी भी नहीं बनी थी उस वक्त। तो हम पिपड़ी गए, वहां से एक बहुत जानदार बेल, बहुत माइनस जानदार बेल हमने खरीदा, कद काट भी उसका यूं था एकदम। अब ये 1100 का या 11,000 का, दोनों में से एक रकम अब मुझे याद नहीं है। हाँ हो सकता है 1100 भी हो सकता है, क्यों वो लाखों का उन दिनों जानवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1100 का हो सकता है मिला हो। फिर हमने एक वो वहाँ होते हैं, पहले होते थे घरों तक पहुंचाते थे, तो किसी को सौंप दिया, कोई गारंटी वारंटी लेकर उससे बेचने वाले से, बड़े भाई ने इनको सौंपा। हम लोग बस में और जिस तरह भी हम पहुंच गए। और वो जानवर जो है वो पैदल चल कर वो पिपड़ी से खारादर उसने पहुंचाया जानवर। अब कितने घंटे लगे होंगे वो जानवर, तो जानवर इंसान भी साथ चलता रहा, इस दोनों ही थके नहीं थके तो भी जानवर जानवर होता है। ये गधा गाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, बैल गाड़ियां, ये सब चलते हैं ना जानवर। गाड़ी भी चलती, ऊंट गाड़ी भी चलती, ऊंट चलता सारा दिन चलते रहते ये लोग। तो इनमें और हमारी कुव्वत बर्दाश्त पे फर्क है। माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 93 में जो ना एक बेल लिया था, वो मुझे याद पड़ता है 25,000 का था, उसको भी पैदल ही लाए थे सोराबगढ़ से, 25,000 का? जो मुझे याद पड़ता है। अच्छा वो आपकी पैदाइश के बाद का बोल रहे हैं ना? हाँ वो तो अलग है, वो तो वो 80 से भी पहले की बात कर रहा हूँ 80 से पहले। हो सकता है 1100 का हो। सैकड़ों ने पैदाइश के बाद हजारों, हजारों। अब हमारे बच्चे आपके लाखों, बच्चे आ गए तो लाखों लाखों, आगे देखो करोड़ों में कब पहुंचता है। अल्लाह पाक खैर फरमाए। वो तो जो ऊंट का बैठना, ये भी एक फन लाता है ना, हर एक का काम नहीं है ऊंट को बिठा सके। तो मदी चाहे के नाज़रीन, ऊंट भी जो है ना, ये बाकायदा एक तरकीब होती है ऊंट के बैठने की भी। तो जरा देखते हैं ऊंट को बिठाया कैसे जाता है, जरा ऊंट को बिठाने का दिखाएं। और ज्यादा मजा जब आता है जब ऊंट को बिठाने के साथ साथ इसके ऊपर कोई बैठा हो। पीछे को भी नहीं आपको अब पता नहीं बैठना है। नहीं उसके ऊपर तो कुछ घोड़ी वगैरह आपका बनी- मूड है, नहीं गिर जाऊंगा। कोई जाए नहीं ना वो ऊंट वाले इसके ऊपर भी बैठ जाते पकड़ने का कुछ होता ना, हाँ बिल्कुल। लेकिन हैं। ऊंट वाला वही था, शेख फरमाए फिलहाल तो इजाजत भी नहीं है, कुर्बानी का जानवर है ना। शरण। अच्छा अच्छा आप उठे कैसे भाईजान, ये अपनी मर्जी से? इस पे सवारी जब इसको नफा उठाना, इधर खाली वो थोड़ी देर के लिए बच्चे को जो रख दिया जानवर पर, बड़े जानवर पर, तो फायदा तो हुआ ना, इंतफाक उठाना, फायदा उठाना ये मना किया। इसको देख कर भी फायदा उठ रहा है, इसमें सवारी इसकी इसमें कर रहे हैं। जात से फायदा तो नहीं उठाया जा रहा ना। सवार होंगे तो सवार की कोई ना कोई सवार होने की हिकमत ये होती है ना कि कोई सफर तय करे।
रास्ता देगा। तो खाली थोड़ी से, अब जैसे बच्चे को बेल पर बिठा दिया, कुर्बानी का सौदा कर लिया, इसका नफा उठाना, ये उस नफे में क्या आएगा? बिल्कुल आना चाहिए इसको। नहीं, मुतलक्कन इस पर सवार करने से मना फरमाया गया है कि जानवर पर सवार नहीं किया जाएगा। इसमें कोई भी जानवर जिस पर बिठाया जाए ना, तो उसकी, अब तो बहरहाल दौर गुजर गया वो वाला, वरना पहले उसकी वैल्यू के अंदर कमी आती थी इस हैसियत से। यानी मुस्तअमल हो जाता था यूं। कह सकते हैं उसको जी। बुखारी का जानवर मुस्तअमल। हाँ, ये प्योर नहीं तो ना 0 मीटर, 0 मीटर। अब वो 0 मीटर ना रहा। यूज अच्छा वो फैजाद नहीं बैठे जी। और मसले हो जाते, आपका जो होता हो नहीं तो ये तो जानवर का सब भी काम मसला हो बैठने देते हैं। जाता है। जानवर का मसला नहीं हो तो मसला तो इनके साथ होता है। अच्छा इनके साथ ही होता है। अच्छा, मैं अगर है ना, यानी ये तो कुर्बानी के जानवर के मसाइल की वजह से मैं नहीं बैठता, लेकिन अगर शेख फरमाते तो मैं बैठ जाता, क्योंकि घोड़े पे भी मैं फर्स्ट टाइम बैठा था। और वो जो वो तो मेरे कहने बगैर मुश्किल है ना, मुश्किल नहीं है, लेकिन बैठने की इजाजत नहीं है। अच्छा, इसके ये घुंघरू और ये जो घोड़े पर बैठे थे, घोड़े ने वो जो करा था ना, जी। ऊंट से नहीं करा ना। ऊंट करता है। हाँ तो ऊंट पे कुछ और ही करेगा। ठीक है, सल्लु अलल हबीब। अच्छा जी। भाई साहब, सल्लल्लाहु घुंघरू अलैहि के बारे में शेख, जी जी। ये घुंघरू इसको मैंने अक्सर देखा है, कुछ है ना जानवरों को लाजमी पहनाए जाते हैं। तो ये तो घुंघरू का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब कुर्बानी का जानवर है, ना पिलाएं, दुल्हन की तरह है ना जानवर को सजा देते हैं। कुछ मुख्तलिफ किस्म के हार हैं यहाँ पे, कुछ है ना मुख्तलिफ नकील है, मुख्तलिफ लगे हुए ना। ये देखें जैसे ये हैं। अब अगर ना पहनाएं तो क्या होगा? पहनाने का क्या फायदा है? सवाब है। और घुंघरू भी हैं, और घुंघरू की हल्की हल्की आवाज जा भी रही है। घुंघरू होते हैं आवाज देने के लिए। जी जी। मतलब घुंघरू कहता कौन इसको? तो ये कि पहले तो ये होता था, अब भी होता होगा, कि घुंघरू वगैरह इसलिए बांधते थे कि अगर सारबान बोलते हैं ऊंट चलाने वाले को, तो वो जा रहा हो आगे तो इसको इत्मीनान हो गया, जो छम की आवाज है तो मेरा जानवर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो अगर छम ना हो तो उसको पता ना चले ना। तो अब ये कि इस वक्त हम पहना रहे हैं घुंघरू या पहनाए जा रहे हैं, तो वो इसकी वो जीनत के लिए पहनाए जाते हैं। तो अब इसमें अगर ताजीम की नीयत से हार, तोरे, घुंघरू, झांझर, ये अगर इसलिए कि कुर्बानी का जानवर है, अल्लाह की राह में कुर्बान होगा, तो ये शाइरुल्लाह में से, यानी अल्लाह पाक की निशानियों में से, तो इसलिए इसको अगर ये ताजीमन पहनाया, ताजीम की नीयत से, ये कुर्बानी का जानवर है, राह खुदा में कुर्बान होना है, इस नीयत से पहनाएंगे तो जायज भी है, कार्य सवाब भी है। हुजूर फिर ये कुर्बानी के बाद ये घुंघरू और ये जो चीजें होती हैं जो इसको पहनाई जाती हैं, इसका क्या करना ये होगा? बाद नहीं, ये पहले हटाने होंगे, ठीक है। वरना तो खूनम खून हो जाएंगे। ऐसे ही होता है। लोग हटाते नहीं आमतौर पे, हाँ। वो जाया हो जाएगा। माल को जाया करना ये भी जायज नहीं है कि रस्सी में जो काम की है तो वो निकालनी पड़ेगी, ये भी नहीं लोग। इसका करना क्या होगा? ये अब इसमें थोड़ा अकबल, यानी अगर तो उसको नीयत पहले से की हुई थी इसने कि ये ताज़ीम के लिए डाले, और पहले से इसने इरादा किया हुआ है कि इसको सदका करेगा, फिर तो उसे चाहिए कि सदका ही करे, वरना फिर उस पर सदका करना लाजिम नहीं है। कर दे तो अच्छी बात है, वरना संभाल के रखता है अपने पास तो रखने की भी इजाज़त है। फतह रज़विया शरीफ में कि अगर पहले से नीयत की है कि मैं ये अल्लाह की राह में किसी को दे दूंगा, और इस नीयत से इसको सजावट का सामान लगाया, अब तो इसको देना है, ये दे रहा है खुदा में किसी नॉर्मली लोग कसाब ऐसे शख्स को जिसको ज़कात दे सकते हैं, यूं समझ लो। और वो भी मतलब यानी कि वाजिब नहीं है, इसका हुक्म है। अच्छा जरा ये मैं पूरा मसला कर लेता। जी जी जी। तो ये वाजिब नहीं है, बल्कि ये लिखा फतह में कि हुक्म है कि इसको दे दे, नहीं दिया तो बुरा किया, ये भी अल्फाज आगे पीछे, ये भी अल्फाज कि बुरा है कि ये ना दे। अच्छा, और अगर ये कुछ भी नियत नहीं की और पहना दिया तो अब ये खुद रख सकता है। तो अलाज़त ने यहाँ तक मिसाल दी है कि अब किसी ने कमरे में जानवर को कुर्बानी का रखा, अगर वो चाहे तो भले उसकी मालिक है तो कुर्बानी के जानवर जा रहा, कमरा भी राह खुदा में दे दे, लेकिन इसको इसका हुक्म नहीं दिया जाएगा ना क्यों दे दे। अच्छा, कुछ यहाँ पे शरीफ बछड़ियाँ भी हैं, और मैं शरीफ इसलिए कह रहा हूँ कि क्या शरीफ आई? ये नहीं शेख, ये नहीं, जैसे ये मैं इसके पास आया था और इसको प्यार किया था मैंने, और ये देखें तो इसलिए शरीफ है। और ये भी हम ज्यादा आएंगे तो इसकी शराफत इम्तिहान में ना पड़ जाए।
काफी देर से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, इसके पास भी आया हूँ और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी है, कलर कॉम्बिनेशन देखें इसका। और शेख आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। ये सारी लाती है। अच्छा, दूसरे बच्चे जो बड़े बच्चे ने सवाल करना था, आए जरा जी, आप जरा यहाँ पर तशरीफ लें, बस यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाइए। या रसूल ये घेनी, जी ये घेनी कोडू। नस्ल कहलाती है। अच्छा, ये तो गेनी तो नॉर्मल मशहूर है, जैसे अभी जैसे छोटे कद वाले को कहते हैं कोडू, तो कोडू वगैरह इस तरह भी कह सकते हैं ना। हाँ, प्यार से ठिंगना, छोटा जानवर, कोडू जानवर। इस मानो कर घेनी बोलते हैं। जी, वैसे तो नॉर्मली गेनी बोलते हैं, हाँ। लेकिन एक है ना, जैसे कोई छोटे कद का आदमी होता है तो उसको छेड़ने के लिए बोलते हैं यार कोडू है, तो उस मगर ये बाकायदा नस्ल होती है इसकी। अच्छा, तो और इसको पालते हैं। ये गोश्त फरोश इसको नहीं ले सकता, महंगी होती है। इसको छुटपन से पालते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उसको गोल करते हैं। बकरी ईद में इसका दाम अच्छा आता है। लेकिन साइज कम, हाइट कम, पैसे ज्यादा, यूनिक चीजों के पैसे ज्यादा लेना, ये क्या मतलब? तगड़ा जानवर हो, 40 मन का हो, 60 मन का हो, गोश्त भी ज्यादा निकलेगा और फिर डिशें भी ज्यादा बनेंगी। अब है ना, मतलब स्पेशलिटी अगर छोटी कद की है तो इसके पैसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें ये स्पेशलिटी है। छोटी बकरी है, उम्र में पूरी है, तो उसके पैसे ज्यादा है। तो ये एंटीक चीजों के पैसे ज्यादा लेना, एक तो क्यों लेते हैं, और लेना क्या सही है, जबकि उसमें तो गोश्त नहीं निकलेगा इतना। सोना और पीतल देखने में एक सा है। पीतल है, इसकी कीमत आपको अंदाजा होगा सोने की कितनी ज्यादा कीमत होती है। दोनों में देखने में भी सेम है। तो अब ये कि सोना महंगा बेचना कैसा? आप पीतल ले लो। अगर आपको ये घेनी परवड़ती नहीं है, कोई और जानवर पे हाथ रख लो, इसकी पसलियां नजर आ रही हो। लेकिन पुले सिरात की सवारी है, ये मैंने सुना है, तो अब है ना, पुले सिरात की सवारी तो भारी भरकम हो, तो नहीं, इसमें भारी भरकम शर्त नहीं है। खुश दिली के साथ अल्लाह की रिजा के लिए, बगैर नुमाइश, नमूद, नाम, वाह की शोहरत वगैरह की ख्वाहिश के बाद रब्बे करीम की खालिस रिजा के लिए जो कुर्बानी की जाएगी वो कबूल है। बाकी अब दुनिया को दिखाने के लिए घेनी लाएं या मतलब कोई टीले जितना, पहाड़ जितना कोई बेल उठा लाएं, और जी ये चाहता कि मेरी वाह हो जाए, शोहरत हो जाए, मुझे लोग सखी कहें, इसको तो ज़ाहिर है कि वो जब एक कुर्बानी राय खुदा में जब करनी है तो इखलास के साथ करे, भले छोटा जानवर हो, कुर्बानी की शराइत के मुताबिक हो। दूसरे बच्चे ये भी है ना, जो चीज़ कम होती है वो महंगी होती है। तो ये जानवर आम नहीं है, तो घेनी या जो भी है वो आम नहीं है, कम है ये देखने में। तो इसीलिए इसके पैसे भी ज्यादा और इसकी डिमांड भी ज्यादा। सोना भी तो कम होता है ना, कम होता है, पीतल भी ज्यादा है ना। माशाल्लाह। दोनों में फर्क है। हाँ, फर्क है दोनों। हाँ, लेकिन ये कि आम आदमी फर्क नहीं कर सकता। सोना पीतल। अब बच्चों की बारी आ गई है, तो छोटे जानवरों की तरफ चलते हैं। अमीर सुन्नत साहब से ये अर्ज है कि बाज़ बच्चे होते हैं जो बकरों को उकसाते हैं, जानवर को उकसाते हैं कि मारे, यानी कि सर पे हाथ लगाते हैं और पीछे धक्का देते हैं ताकि वो आके मारे। तो इस तरह आप क्या फरमाते हैं, क्या कहा जाए उन्हें जो करते हैं? अब वो वाकई मारता है या खुश होकर उछलता है, जो इसको प्यार कर रहा है और यूं दिखाता, हम दिख बोलते हैं मेमनी में, टक्कर इसको, और एक्चुअली वो मार नहीं रहा होता, खाली उसके हाथ से वो उन्स हासिल कर रहा होता है। यूं करो, यूं आएगा, हाथ से वो रोकेंगे, फिर पीछे जाएगा। तो ये एक तरह का गेम है, मतलब इसको जुल्म कहना तो जरूरी नहीं है। जैसे सिंग वगैरह भी होते हैं। हाँ, फिर धिक मारता है तो फिर हाँ बिल्कुल, हाँ वो अलग बात है। लेकिन अब मुतलकन खाली आप इसको टच भी नहीं करो, इसको यूं भी नहीं करो, इसको यूं भी नहीं करो, अब ये सारे कैसे होएगा? हमने सुना मैंने वहाँ एक गाय देखी है जो रो रही है, तो ये रोती क्यों है? रोती है या मिट्टी की वजह से इसके आंसू निकल आते हैं। जैसे आपकी अम्मी प्याज काटती होगी तो उनके तो आंसू देखे होंगे, अब रो नहीं रही होती, पानी निकल रहे होते, धुएं से अपने पानी निकल आते हैं। अब खुदा पे जाने किस वजह से पानी निकल रहे हैं, रो भी सकती है। लेकिन हम कैसे क्या अलामत की रो रही है, कोई भी वजह हो, अल्लाह वाकदम। तो आपने प्याज का फरमाया ना, वैसी प्याज बहुत कम आती है, ऐसी प्याज अब कम आती है। अब कम आती है, अब नहीं है,
अच्छा जी, वो बहुत महंगी है वो वाली। अच्छा, बगैर आंसू की प्याज आ गई है। अब बगैर क्या बात है। अमीर अली हसन इसके फवायद भी हो सकता है कम हो गए हों, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाज़ वक़्त वो प्याज के फायदे डबल भी एडवांटेज होता है कि ना, बाज बंदा दुखी हो तो प्याज काटते काटते ही रो ले के किसी को पता ना चले कि मैं दुखी हूँ। या वो कुछ बनवाना हो। जी जी, फिर भी अमीर अली हसन दाऊद बरकातुहू लाड़िया, जैसे यहाँ पर काफ़ी जानवर जमा है, तो जैसे बैल भी हैं, ऊँट भी है, बकरे भी हैं, तो यहाँ पर जैसे गली मोहल्ले में भी ऐसे बाड़े वगैरह लगे हुए होते हैं, तो अब वहाँ पर जानवर ज़्यादा होते हैं, खिलाने के लिए जो कहा जाता है टब या बाल्टी वगैरह, वो जानवर को जैसे चारा खिलाना होता है तो उसके लिए बाल्टियाँ वगैरह कम होती हैं। अब किसी के जानवर के आगे कोई टब रखा हुआ था, उसने जानवर खा लिया, अब बगैर उसके मालिक की इजाज़त लिए अब जो है क्या बोलते हैं टब उठा लिया और उसमें अपने जानवर को खिला दिया, तो ऐसा करना कैसे? अब इसमें इजाजत लेनी चाहिए। बात सूरत ऐसी होती है कि ये पता होता, अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में कि एक दूसरे के टब और ये ले लेते हैं, तो इसको बुरा मालूम नहीं होता और उस टब को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता, है ना। ऐसी सूरत में हो सकता है कोई रियायत, अंडरस्टैंडिंग हो आपस में। वैसे मालूम भी होता नहीं वैसे एहतियात तो इसी में कि पहले से तरकीब बना लिया है, एक दूसरे का चारा खा ले, एक दूसरे का हम ये टब बाल्टियां इस्तेमाल कर लें तो वो शायद मना नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, जानवर साथ है, इनको रखना बड़ा मुश्किल है, ये इनको मसला आप समझा नहीं सकते, जानवरों वाले मसला नहीं समझते, एक दूसरे का यूज कर रहे होते, ये तो है ही जानवर। या सैयदी, अगर कोई कुर्बानी कर रहा है और उसके मिसाल के तौर पे बड़ा जानवर है, 7 हिस्से हैं, घर के 3 अफराद हैं, तो उसने 3 अफराद के दरमियान बड़ा जानवर कर लिया, तो बकिया जो 4 हिस्से रह गए हैं उसके लिए किसी की नीयत करनी चाहिए या ये नीयत कर लेनी चाहिए कि बस ये तीनों की तरफ से हो गई, या बेहतर ये है कि 4 मजीद कोई ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी की नीयत कर लेनी चाहिए? की तरफ से हो तो जाएगा ना, हाँ एक की तरफ से भी हो जाएगा, बल्कि बेहतर है एक की तरफ से गालिबन। हाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊँट, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पूरा ऊँट की शायद है तरकीब। यानी आप अलैहिस्सलाम ने तो हज्जतुल वदा के मौके पर 100 ऊँट फरमाए थे, उसमें से 63 नहर फरमाए थे और 63 की जी हिकमत बाज़ उलमा ने ये बयान की है कि आपकी उम्र मुबारक भी 63 साल हुई थी। हर साल के बदले एक ऊँट की कुर्बानी आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में पेश की। न उसमें हिस्से नहीं थे साथ साथ। अगर शेर पढ़ो ना यार, हर एक की आरज़ू है। ऊँट जो थे वो खुद पेश हो रहे थे आगे बढ़ बढ़ के सरकार मुझे अपने मुबारक हाथों से नहर फरमाए। हर एक की मुझे है पहले मुझको ज़ब्ह फरमाए, हर एक की आरज़ू है पहले मुझको ज़ब्ह फरमाए, तमाशा कर माशाअल्लाह। नातवा अब ज़बह की जगह नहर ये बोले, हर एक की आरज़ू है पहले मुझको नहर फरमाए, तो सरकार ने नहर फरमाया। फिर मैं वज़ाहत करता हूँ, हर एक की आरज़ू है पहले मुझको नहर फरमाए, तमाशा कर मरने वाले ईदे कुर्बा में तमाशा कर रहे हैं, मरने वाले